Okay, good morning. Good morning, sir. Okay, sorry for joining late. I was in a different seminar actually. I was in another seminar. Okay, so we will start with a new topic from today, and so we are starting with a very interesting topic actually. And this was supposed to be unit. This is actually unit one, but I have just changed the lesson plan for you, and I have my obvious reasons for doing this. Okay, so let us start with a very interesting topic. And this topic is actually a combination of two topics that we are going to study in contrast. And we are now going to study the difference between arrays and a new type of data structure, and that is known as linked lists. And we will understand why we are running these two in contrast, because they have something in common, and they have some very important definition points also, and you will understand on which situations which of them performs better. Okay, so let's start. By the way, what is the definition of an array? What is the definition of an array? It's a sequence of same data type. Yeah, array is a collection of homogeneous data items. When I say homogeneous, that means the data items are of same type, okay, and which are stored in adjacent locations. So when I say array, the important points here are: first, it has to be homogeneous, okay. All the items should be of the same type, and second, they are at adjacent memory locations, okay. All the elements are adjacent memory locations. So in general, when you describe an array, we describe like this: we have some data items. Generally, the size of the array is fixed. I am saying generally because we now have some programming languages that provide dynamic size array also. But generally, when we say array, generally we assume that the size is fixed. Okay. Okay. And when we talk about array, irrespective of the programming language, the array elements are always stored in adjacent memory location. So that means if you have an array containing these follow elements A, B, C, D, so the memory locations will be adjacent. So if A is at memory location 100 and the size of the type of A is say X bytes, then B will be at X offset from A. Okay, so this will be X. So this will be naturally 100 plus X, and similarly 100 plus 2X, 100 plus 3X. Okay, so array elements, the key feature of array is that elements are of same type and the elements are at adjacent memory location. And this makes it much easy to handle array because we can use the subscript operator to access the array element. हम array के elements को subscript से access कर सकते हैं. What is the subscript operator? आप भी जानते हैं subscript किसे बोलते हैं. जब आप लिखते हैं array of 5, तो उसका मतलब होता है it is actually the fifth element from the base address. Okay, fifth element from the base address मतलब जो base address है उससे आप पांचवें ऑफसेट में जाइए और उस मेमोरी लोकेशन में जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कीजिए. ओके, सो एरे के बारे में आप सब लोग पहले से जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा. लेट अस डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ एरे. एक्चुअली अभी तक आपको पीपीसी में पीपीएस में हम लोगों ने एरे पढ़ाया था, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ड्रॉबैक्स ऑफ एरे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एरे. या फर्स्ट, मान लीजिए मैं आपको अगर हम साइज की बात करें, द साइज इज फिक्स्ड. कुछ लैंग्वेजेस को छोड़ के या कुछ नए जो लाइब्रेरीज आई हैं उनको अगर मैं डिस्कशन से हटा दूं, इन जनरल द साइज ऑफ एरे इज फिक्स. ठीक है, एंड द साइज ऑफ एरे हैज टू बी डिक्लेयर्ड एट द कंपाइल टाइम. ओके, सो कंपाइल टाइम मतलब जब आप कोड कंपाइल कर रहे हैं, यानी जब रन करने से पहले, तभी आपको साइज बताना पड़ता है. इसका ड्रॉबैक क्या है? कैन एनी ऑफ यू टेल मी कि साइज फिक्स होने से क्या ड्रॉबैक है?
यस, साइज फिक्स होने से क्या ड्रॉबैक है? सर अगर हमको कम लगेगा और हम ज्यादा डाल दिए तो वेस्ट हो जाएगा। और उसका उल्टा, उसका उल्टा, सर ज्यादा लगेगा और हम कम डाल दिए तो भी नहीं चलेगा। या एग्जैक्टली, आप स्पेस ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। अगर आपका एरे छोटा है और आपको ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए तो आपके पास जगह नहीं होता। लाइक दिस, आपने एरे बनाया 5 का, आपका 6वां एलिमेंट आपको स्टोर करना है, आपके पास जगह नहीं होता। और इसका उल्टा, अगर आपके पास एरे 5 एलिमेंट का है और आप 2 ही एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो आप जगह वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द मेमोरी एफिशिएंटली, राइट? दूसरा ड्रॉबैक, कैन यू टेल मी दूसरा ड्रॉबैक क्या है? Yes, anyone? एरे का ड्रॉबैक? सर एक ही टाइप का डेटा स्टोर करें। एक टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, ये ड्रॉबैक हाँ हो सकता है। और इसके अलावा और बड़ा क्या ड्रॉबैक? सर इंसर्शन और डिलीशन। या इंसर्शन डिलीशन में प्रॉब्लम क्या है बोलो? सर कहीं पे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है तो हमको सब एलिमेंट को खिसकाना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट लेफ्ट जैसे। या वेरी गुड। तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स एट एनी रैंडम पोजीशन फिक्स टाइम, ठीक है? इसका मतलब है अगर आपके पास एक एरे है जिसमें मान लेते हैं कि n एलिमेंट्स हैं, मैं डिस्कशन n के लिए कर रहा हूँ, और मैं अगर आपको बोलूं कि आपको इंसर्ट करना है सेकंड और थर्ड के बीच में, तो जितने एलिमेंट्स इसके पीछे हैं उन सबको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, सॉरी उन सबको आपको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सी दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो को देखिए। यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं कि एलिमेंट्स हैं a जो कि एरे के 0 इंडेक्स पे है, देन यू हैव b, देन यू हैव c, देन यू हैव e, देन यू हैव f, g एंड सो ऑन, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि हमारे पास साइज बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, बट वी हैव n एलिमेंट्स। मान के चलते हैं कि दैट वी हैव n एलिमेंट्स, राइट? और वी हैव लॉट ऑफ सफिशिएंट स्पेस, मतलब स्पेस बहुत है। अब अगर मैं आपको बोलूं आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट d एट लोकेशन नंबर 3, मतलब मुझे यहाँ पे d को इंसर्ट करना है एट दिस पॉइंट, ओके? If I say that I want to insert d at this point, so index wise देखिए, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3 and so on, this is 4. So क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर टोटल n एलिमेंट है और मुझे इंडेक्स 2 के बाद एक एलिमेंट शिफ्ट इंसर्ट करना है, तो कितने एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा? Any guesses? n-3? या n-3। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं ये देखिए, ये एलिमेंट्स, ये n-3 एलिमेंट्स को मुझे राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। और क्यों राइट में क्यों शिफ्ट करेंगे? आई थिंक ये आंसर ऑब्वियस है। एक एक करके इनको राइट में शिफ्ट करेंगे ताकि लेफ्ट में जगह बनता जाए। सो g विल गो हियर, f विल गो इन प्लेस ऑफ g, e विल गो इन प्लेस ऑफ f, फाइनली वी विल हैव एम्प्टी स्पेस हियर, एंड इस स्पेस पे हम d को इंसर्ट करेंगे, ठीक है? अब देखिए, अगर ये शिफ्टिंग मैं यहाँ पे कर रहा होता, अगर मैं बोलता कि मुझे एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना है बिफोर ए, इन दैट केस कितने एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं? अगर मुझे नया एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन में ही इंसर्ट करना है तो कितने एलिमेंट राइट में शिफ्ट करने पड़ते हैं? n एलिमेंट्स, पूरे n एलिमेंट्स, राइट? सो आपको एलिमेंट को राइट इंसर्ट करने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है। और कितने एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ सकते हैं? ये मैक्सिमम n एलिमेंट होंगे और मिनिमम 0 होगा, ठीक है? मिनिमम हो सकता है कि आपको 0 एलिमेंट शिफ्ट करना पड़े अगर आप एलिमेंट को लास्ट में जोड़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कोई चीज कर रहे हैं जिसमें मिनिमम 0 है, मैक्सिमम n है, तो मैं उसका एवरेज n/2 ले सकता हूँ, ठीक है? सो ऑन एन एवरेज किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए लगभग हाफ ऑफ द एरे का जो साइज है इतने एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, एंड दिस इज अ बैड थिंग। अच्छा, ये तो हो गया इंसर्शन। डिलीट करते वक्त भी शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? अगर हम डिलीट कर रहे हैं एरे के बीच से कोई एलिमेंट, तो क्या हमको तब भी शिफ्ट करना पड़ेगा?
यस सर। ओके, तो डिलीट करते वक्त शिफ्ट कितने एलिमेंट्स को करना पड़ेगा? मिनिमम मैक्सिमम क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी शिफ्टेड? यस, एनी गेसेस? ये ए है, ये बी है, सी है। मान लीजिए आपको किसी एक एलिमेंट को सर मिनिमम 0 और मैक्सिमम n-1। ओके, वेरी गुड। मिनिमम कब आपको कब 0 आएगा? किसको किसको डिलीट करते वक्त? सबसे लास्ट वाले सर, में लास्ट 0 वाला। आएगा और सबसे फर्स्ट वाले में n-1। सबसे लास्ट वाले, वेरी गुड। मान लीजिए आप f को डिलीट कर रहे हैं, f को, तो f को डिलीट करते वक्त आपको किसी और एलिमेंट को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आप चुपचाप इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर वर्स्ट केस, अगर आप a को डिलीट करना चाहते हैं तो a को तो डिलीट करके निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है? a को हम लोग बाहर फेंक देंगे, लेकिन a के बाद इन सभी एलिमेंट्स को, यानी b से लेकर सब एलिमेंट्स को 1 by 1 लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड ये लेफ्ट में शिफ्ट करने का कोड विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ये वर्स्ट केस है। और अगर आपको मैं पूछूं कि कितने एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, द आंसर विल बी n-1, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि एरे में n एलिमेंट है, एक को तो हम डिलीट ही कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। n-1 एलिमेंट को एक स्पेस लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो मिनिमम 0, मैक्सिमम n-1, एवरेज निकालेंगे तो n-1/2। वंस अगेन n-1/2 इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम n/2। बड़े n के लिए n-1/2 और n/2 आर ऑलमोस्ट सेम। सो अगर आप किसी चीज को n/2 टाइम्स कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप किसी चीज को n/2 टाइम्स कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग बिकॉज व्हाई इट्स नॉट अ गुड थिंग, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका n है, मतलब n मतलब आपके एरे का साइज है, और अगर आप किसी चीज को n/2 टाइम्स कर रहे हैं, सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ कि ये एरे का साइज है n और मैं कितने एवरेज नंबर ऑफ शिफ्टिंग कर रहा हूँ इंसर्शन डिलीशन करते वक्त, वो आ रहा है n/2। अब n/1/2 भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एज वी गो ऑन हाई इन द स्पेस ऑफ n, जैसे जैसे n बढ़ता रहेगा, n-1/2 and n/2 hardly make a difference. So if something is n/2, can you tell me उसका ग्राफ कैसा होगा? What is the graph of n/2 with n? What is the graph of n/2 with n? Linear, parabola, exponential, कैसा ग्राफ है? If I draw the graph of n linear, और ये I think कुछ ऐसा होगा, right? So if n is like 10, if n is 10, then n/2 will be 5. ठीक है? So अगर किसी ऑपरेशन का जो नंबर ऑफ स्टेप्स है या जो टाइम है वो n के साथ लीनियर ग्राफ रख रहा है, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग बिकॉज जैसे जैसे आपका n बढ़ते जाएगा, आपका n/2 भी प्रोपोर्शनली बढ़ता जाएगा। एक्चुअली उसी प्रोपोर्शन, अगर n 1 करोड़ है या 1 करोड़ नहीं, चलिए n अगर 1 लाख है, तो एक एलिमेंट को शिफ्ट या डिलीट करने में ऑन एन एवरेज आपको 50,000 शिफ्ट्स करने पड़ रहे हैं। दैट इज अ ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज हम इस बारे में और कल के लेक्चर में और डिस्कस करने वाले हैं, कल परसों के लेक्चर में, कि ये ऐसे ग्राफ्स कहाँ से आते हैं। बट याद कीजिए बाइनरी सर्च में मैंने कहा था कि जितने एलिमेंट हैं, वर्स्ट केस में किसी एलिमेंट को ढूंढने के लिए log n स्टेप लगते हैं, वो भी बेस 2 में। अगर आप log n का ग्राफ देखें, सो log n बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, आप अगर और जैसे जैसे n बढ़ते जाएगा, log n मतलब बढ़ता जरूर है बट बहुत ही कम। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये इस केस में वी हैव अ लीनियर ग्राफ, सब लीनियर बोलूंगा, 45 डिग्री से कम नहीं है। सो लीनियर इज ओके, फाइन। लीनियर ग्राफ्स आर एटलीस्ट better than exponential graphs, but still linear algorithms are not very desirable, क्योंकि आपका n जैसे जैसे बढ़ेगा n/2 प्रोपोर्शनली बढ़ता है। ठीक है, सो इसलिए एरे के साथ इसको हम बड़ा ड्रॉबैक मानते हैं, दैट किसी एलिमेंट को बीच में इंसर्ट करना या बीच में डिलीट करने के लिए लगभग एरे का में जितने एलिमेंट हैं, जितना साइज है वो नहीं, जितना एलिमेंट है लगभग उसका हाफ शिफ्ट ऑपरेशंस हमको अननेसेसरी करने पड़ते हैं। ठीक है, and that makes it a little bit more time consuming than you would expect in a real time application. ठीक है, okay. So array के बड़े drawbacks, can we just summarize बड़े drawbacks of array? हमने क्या क्या array के drawbacks अभी तक समझना है हमको? Can we quickly summarize? क्या can we quickly summarize drawbacks of array? क्या क्या हमने को summarize किया अभी? Fixed size, almost fixed size. ठीक है, except in some new languages. Fixed size,
इंसर्शन, इसको याद रखिएगा, ये थ्योरी क्वेश्चन में आएगा। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स इज टाइम कंज्यूमिंग, और अगर आपको कोई पूछे कितना टाइम कंज्यूमिंग, तो आप अब आपके सामने एक आंसर है। वर्स्ट केस में इट्स ऑलमोस्ट जितना एलिमेंट है लगभग उतना ही, जब आप सबसे सामने इंसर्ट या डिलीट करते हैं। एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी आपके एरे में सभी एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट स्टिल बाय डेफिनेशन एरे कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। या सो इनको ओवरकम करते हुए, अच्छा, ये तो हो गया एरे के ड्रॉबैक्स। एरे के कुछ अच्छी बातें भी हैं। सो लेट अस वर्क ऑन सम पॉजिटिव थिंग्स ऑफ एरे। एरे का फायदा ये है दैट रैंडम access to any element is possible. Now what is random access? Can you tell me? Okay, अगर आपके एरे में 1 लाख एलिमेंट भी है और मैं बोलूं मुझे 5th एलिमेंट चाहिए, तो 5th एलिमेंट डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बाय राइटिंग एरे ऑफ 5, ठीक है, एक्चुअली 6th एलिमेंट है, ओके, राइट। और अगर मैं बोलूं मुझे एरे का 999th एलिमेंट चाहिए, सो ये देखिए 1000 एलिमेंट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय राइटिंग एरे 999, ये 1000 एलिमेंट है। सो इसका मतलब क्या हुआ रैंडम एक्सेस का मतलब? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सेस? या एनीवन? सर किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका फायदा क्या है? सर इसके लिए फिर हमें उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स में नहीं झांकना पड़ेगा। या एग्जैक्टली, आपको किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए और किसी भी दूसरे एलिमेंट को टच नहीं करना पड़ता। यू कैन डायरेक्टली जंप टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे मैं बोला कि मुझे एरे का 999th एलिमेंट चाहिए, एक्चुअली 1000th एलिमेंट, ठीक है, तो आपको बस ये लिखना पड़ेगा एरे 999, आपको 0 से आगे 0 1 2 3 4 करते हुए आने की जरूरत नहीं। सो दैट आल्सो मींस दैट इसको एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा, इसको एक्सेस करने में उतना ही टाइम लगेगा। दैट मींस आपका एरे कितना भी बड़ा हो, अब आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए, आपका एरे कितना भी बड़ा हो, किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने का जो टाइम है वो सेम रहेगा। तो मैं एरे का पहला एलिमेंट बोलूं, आखिरी एलिमेंट बोलूं, बीच का एलिमेंट बोलूं, 10वां एलिमेंट बोलूं, 70th एलिमेंट बोलूं, 90th एलिमेंट बोलूं, it will take the same time to access any particular element of the array, and this is a very good thing while designing an algorithm. अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है तो हमारा एल्गोरिथम डिजाइनिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखेंगे हमारे पास ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे कि कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बट इन केस ऑफ ए एरे इट्स पॉसिबल टू रैंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट। ओके, तो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट्स। एरे के एडवांटेज में है रैंडम एक्सेस, और एरे के ड्रॉबैक में है फिक्स साइज, उससे भी बड़ा ड्रॉबैक इंसर्शन डिलीशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वर्स्ट केस में इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, या इट टेक्स द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट इन द एरे, एंड दिस इज वेरी बैड थिंग। एंड एक और छोटा सा ड्रॉबैक ये है, एरे एलिमेंट्स कंटेन होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट, तो अगर आपको अलग अलग तरीके के एलिमेंट स्टोर करने हैं, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक दूसरा तरीका है, इम्प्रोवाइज करके कर सकते हैं, बट नॉर्मली एरे विल कंटेन होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। Okay, am I any doubts in this? Now I'm going to tell you the solutions of this, but any doubts in this? No sir. Okay, now let us quickly go and see in problems को linked list कैसे solve करता है। Okay, now I'm going to introduce a new data structure for you known as linked lists. Okay, now linked lists कैसे, basically these are basically lists जिनमें एक एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट के बारे में जानता है, एंड इन सम केसेस एक एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट के बारे में भी जानता है। सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको मेरे साथ साथ बनाइए। सो वी हैव, इमेजिन कीजिए दैट यू हैव ए 2D एरे, ठीक है, यू हैव ए 2D एरे जिसमें हमारे पास 2 कॉलम है, हर एलिमेंट के पास एक डेटा है। इस डेटा को कई बार हम डेटा बोलेंगे, कई बार हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे, और एक और इसके पास इंफॉर्मेशन कंपोनेंट है जिसको हम लिंक बोलेंगे, या समटाइम्स वी विल कॉल इट एज पॉइंटर, समटाइम्स वी विल कॉल इट एज लिंक। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन पार्ट कॉल्ड एज द इन्फो, एंड दिस इज द लिंक पार्ट
Okay, now let me draw the indexes for you. ये लिंक, ये एरे का 0 एलिमेंट है इसलिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. So these are array elements. So इनका नेचुरल इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा. ओके, आई होप आप इस डायग्राम को बना रहे हैं मेरे साथ. नाउ देखिए, हमारे पास A है यहाँ पे, ठीक है, B है यहाँ पे, C है यहाँ पे, एंड D है यहाँ पे. ओके, अब आप लिखिए A के लिंक में लिखिए 0, B के लिंक में लिखिए 7, C के लिंक में लिखिए 1 एंड D के लिंक में लिखिए नल. ठीक है, सो लेट्स सी कि हमने क्या बनाया है. अच्छा, एक और एक डब्बा बनाइए यहाँ पे, इसका नाम रखिए स्टार्ट और इसका वैल्यू डालिए आप 3. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बनाया है. हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट में 3 लिखा हुआ है, सो मैं ये मानूंगा कि स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन 3. Okay, so let us draw the diagram here. We have something called as start. इस डायग्राम बनाइए मेरे साथ. And start is pointing to some location. जिस लोकेशन का एड्रेस है 3. So let us make this location here. ये एक लोकेशन है जिसका एड्रेस है 3. ठीक है, अब इस लोकेशन में क्या है? इस लोकेशन में जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो है A, और ये लोकेशन के पास एक लिंक नाम का एक कंपार्टमेंट है जिसमें 0 लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स यहाँ पे 0 लिखा हुआ है. ठीक है, इसका जो लिंक पार्ट है. ओके, नाउ लेट्स मेक अनदर बॉक्स, और इस बॉक्स का जो एड्रेस है, जिसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, वो उसको मैं दे रहा हूँ 0. ठीक है, और इस बॉक्स में कैन यू टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? इस बॉक्स में कैन यू टेल मी इस बॉक्स में क्या आएगा? B और ओके, या B आएगा, और इसका जो इंफॉर्मेशन लिंक पार्ट है 7. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर बॉक्स 7. अब हम जो बॉक्स बना रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस 7 कंपार्टमेंट. सो दिस इज एड्रेस 7 कंपार्टमेंट. कैन यू टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? क्या इंफॉर्मेशन है इसके अंदर 7 में? C, and this is pointing to an address 1. Okay, so अभी मैं जो बना रहा हूँ, and this is the last block. It's very important कि हम डायग्राम को कंप्लीट करें. The last block contains the address, the data D, and it is having link at null. तो null का मतलब है it is pointing to nowhere. It is pointing to null. ठीक है, so this is null. Now ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, we call it as a linked list. So start is pointing to A, मतलब address number 3. ठीक है, and ये जो A वाला बॉक्स है, this is pointing to address number 0 that contains B. This block is pointing to address number 7 that contains C, and this block is pointing to address number 1 that is containing 0. 0 is pointing to nowhere. This is called as a linked list. This is called as a linked list. Why it is called a linked list? Because this is a list containing some information and the nodes. Nodes मतलब इसको हम nodes बोलते हैं. ये जो एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर डेटा है और एक लिंक पार्ट है, these are called as nodes. So every node contains 2 parts. ठीक है, every node contains 2 parts. First part is some information that is used for the application, and the second part is a link. आप इस लिंक को पॉइंटर बोल सकते हैं. It is a link or a pointer to the next node. This type of data structure is known as a linked list. It's a linear data structure, and this linked list data structure has the advantage that इसमें insertion and deletion बड़ा easy होता है. Okay, पहले बताइए यहाँ तक क्लियर? ये डायग्राम क्लियर है सबको? Okay, so can you quickly represent? अच्छा, represent नहीं, थोड़ा टाइम कम है, तो can we quickly see कि insertion deletion करना इसमें कितना easy है या कितना tough है? So let us try to insert या delete a data item. Okay, so मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे इस लिंक लिस्ट में एक नया डेटा आइटम जोड़ना है. मुझे B और C के बीच में X को जोड़ना है. So
लेट मी टेल यू कि मैं क्या करना चाहता हूं. आई वांट टू इंसर्ट x आफ्टर b एंड नेचुरली बिफोर c. ठीक है, अगर b के बाद मैं तो c के पहले होगा. तो मुझे बताइए b के बाद और c के पहले मुझे एक नया आइटम जोड़ना है x, तो उसके लिए कितने आइटम्स को शिफ्ट करना पड़ेगा? वन. ओके, आइए देखते हैं शिफ्ट करना पड़ेगा भी कि नहीं. ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए अगर आपको इस आइटम x को जोड़ना रखना है कहीं पे, तो सबसे पहले क्या चाहिए? डब्बा चाहिए. यू नीड डब्बा, राइट? आइए इसका डायग्राम देखते हैं पहले. ओके, लेट्स सी द डायग्राम. हमारे पास कहीं पे b नाम का एक बॉक्स है. हो सके तो उस डायग्राम को मेरे साथ साथ बना लीजिए. कैन यू टेल मी b का एड्रेस क्या है? कौन से बॉक्स पे है b कौन से एड्रेस पे है, कौन से इंडेक्स पे? 0. तो ये इंडेक्स है 0, इसमें आइटम कंटेंट है b. इस डायग्राम को मेरे साथ साथ बनाइए. एंड b का जो लिंक है वो है 7. तो अब मैं एक और डब्बा बना रहा हूं यहाँ पे जो कि 7 वाले कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 7 है एंड 7 कंटेन्स द डेटा आइटम c. ओके, एंड c के आगे क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है. c के आगे बस c के आगे बाय द वे 1 है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. और हम इसको ऐसा लिंक से शो करते हैं, राइट? नाउ अब आपको टास्क दिया गया है इन दोनों के बीच में x को जोड़ने के लिए. सो सबसे पहले क्या करना है मुझे बताइए. अगर x को जोड़ना है सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो b और c के बीच के कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा. नहीं, कनेक्शन तो तोड़ेंगे, पर उसके पहले हमको एक नया डब्बा चाहिए कि नहीं x को रखने के लिए, राइट? यस सर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप वी नीड अ न्यू बॉक्स. हमको एक नया बॉक्स चाहिए. ठीक है, राइट? अच्छा, सेकंड स्टेप, बॉक्स में लिखना क्या है? आइटम क्या है? बॉक्स का इंफॉर्मेशन क्या है? बॉक्स में जोड़ना क्या है? x. सेकंड स्टेप है बॉक्स में x जोड़ना है. थर्ड स्टेप, अच्छा बॉक्स का एड्रेस है मान लेते हैं 5. मान लेते हैं बॉक्स जो है वो 5 में हमने बॉक्स को बनाया क्योंकि 5 खाली है. मैं यहां से देख सकता हूं 4 खाली है, 5 खाली है, 6 खाली है. मैंने रैंडमली 5 ले लिया. तो 5 वाला बॉक्स लिया, बॉक्स में x जोड़ा. अब क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर अब b और c के बीच के कनेक्शन को तोड़ देंगे. एक सेकंड. b और c के बीच में कनेक्शन को तोड़ दिया मैंने. जैसे ही मैंने इस कनेक्शन को तोड़ दिया, ये 7 यहां से मिट गया. अब इस दुनिया में c के बारे में और किसी को नहीं पता b के अलावा. अब मैं c तक कभी नहीं पहुंच सकता. अब आपके हाथ से c निकल गया, और सिर्फ c ही नहीं निकला, c के आगे का पूरा नेटवर्क निकल गया. इस दुनिया में c के बारे में कौन जानता था अभी तक? c के बारे में कौन जानता था? और आपने उस कनेक्शन को तोड़ दिया, तो यू लॉस्ट द कनेक्शन विद नॉट ओनली c बट ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर c और उसके आगे की पूरा नेटवर्क चले गया आपके हाथ से. तो ये कनेक्शन तो मैं तोड़ नहीं सकता, राइट? आपको समझ आ गया होगा कि मैं कनेक्शन क्यों नहीं तोड़ रहा हूं. ठीक है, मैं इस कनेक्शन को तोड़ दूंगा तो आई विल लूज c. आप क्या करेंगे? सर x वाले में 7 को सर नए डब्बे में नए डब्बे में क्या? यस, नए डब्बे में हम c का एड्रेस डाल देंगे. लेकिन c का एड्रेस कौन जानता है? वो हमें पता करना पड़ेगा कि c का एड्रेस. नहीं पता नहीं, आप सही बोल रहे हैं. c का एड्रेस कौन जानता है? वो जानता है b. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, ये था हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट और ये था हमारा लिंक पार्ट. तो c का एड्रेस अगर कोई जानता है इस दुनिया में तो वो है b का लिंक, राइट? तो इस b के लिंक को कॉपी करेंगे x के लिंक पार्ट में, तो ये 7 यहाँ पे कॉपी होगा. तो दैट ऑल्सो मीन्स कि अब ये भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया. तो तीसरा काम है, सबसे पहला काम क्या था? नया डब्बा. दूसरा काम नए डब्बे में x लिखना. तीसरा काम नए डब्बे के लिंक पार्ट में वही लिखो जो b के लिंक में लिखा है. अच्छा, क्या इतना सफिशिएंट है या कुछ और भी करना है इसके बाद? सर फिर हमें b को x की तरफ पॉइंट भी करवाना पड़ेगा ना? या वेरी गुड. सो आपको अब एक और काम करना है. आपको अब इस लिंक को तोड़ के अब आपको बोलना है कि देखो b, अब तुम x को पॉइंट करो. अभी तक तुम c को कर रहे थे, अब तुम c को मत पॉइंट करो. मतलब अब ये 7 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 के जगह? या यहाँ पे आ जाएगा 5. सो दैट मीन्स b के लिंक को अब आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा.
थोड़ी देर पहले जो आप बोल रहे थे कि मैं बी के लिंक को तोड़ दूंगा, वो तो वहां पे तोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तोड़ना जरूर है उसको, पर अभी तोड़ना इस तरह। तो 4 स्टेप है, ठीक है। ये 4 स्टेप के बाद अब एक्स जुड़ जाएगा बी और सी के बीच में। सो आइए देखते हैं डायग्राम में 4 स्टेप कैसे होंगे। सबसे पहले खाली जगह चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं कि खाली जगह हमको मिला 5 में, तो फर्स्ट स्टेप फ्री स्पेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, मुझे मिल गया 5। सेकंड स्टेप वहां पे x को जोड़ो, ये मैंने जोड़ दिया x। नेक्स्ट स्टेप b का जो लिंक है, ये है b का लिंक 7, उसको कॉपी करो कहां पे, x के लिंक में, तो ये 7 को यहां कॉपी किया, ठीक है, मतलब। और उसके बाद एक और स्टेप, b का जो लिंक अभी तक था 7, अब उसको हटाओ, ठीक है, और क्या करो, उसमें क्या लिख दो, 5 7 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब क्या आ जाएगा, बी के लिंक में क्या आ जाएगा, 5। 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। ये 4 स्टेप है। नाउ कैन यू आंसर माय क्वेश्चन, ये पूरा काम करने के लिए मैंने एरे के कितने एलिमेंट्स को शिफ्ट किया, कितने एलिमेंट्स को, एक भी नहीं, मैंने 0 एलिमेंट को शिफ्ट किया, ये है ना मेरा एडवांटेज। आई डिडंट शिफ्टेड एनी एलिमेंट, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 0 एलिमेंट्स वेर शिफ्टेड, ठीक है। और जरा याद करो एरे के केस में व्हाट वाज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसकी शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। एरे के केस में कितने एलिमेंट्स की शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, एरे के केस में मैक्सिमम कितने एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है किसी को इंसर्ट करते वक्त, मैक्सिमम पड़ता है n एलिमेंट, ठीक है, अगर आप एरे के सबसे स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हैं तो, और मिनिमम होता है 0। पर यहां आप देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं है, हमेशा 0 है। तो कोई चीज अगर मैक्सिमम और मिनिमम n और 0 है, मतलब एवरेज n/2 है, और उसका दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि हमेशा 0 है, तो नेचुरली ये बेटर है। ओके, सो कैन वी नाउ डिस्कस कि डिलीशन के वक्त क्या होगा। मैं आपको जल्दी से गैरे बना के दे रहा हूँ, एक लिंक लिस्ट बना के दे रहा हूँ। कैन यू टेल मी, इसको जब डिलीट करेंगे तो इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे। ओके, इसको जरा बनाइए मेरे साथ। ओके, आई वांट यू टू डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। आप मुझे बताएंगे इसको डिलीट करने के लिए कितने स्टेप लगेंगे, और पहला स्टेप कौन सा होगा, सेकंड स्टेप कौन सा होगा, राइट। ओके, नोट कीजिए, ये एरे का इंडेक्स है, दिस इज ओके, सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, index number 3, index number 4, index number 5. Okay, and these are your elements. We have elements as A, B, we have C, we have D, we have E. A is pointing to B, B is pointing to C, C is pointing to D, D is pointing to E, E is pointing to nowhere, and our start, we have a variable called as start, and start is pointing to 0. So can you tell me मुझे I want to delete the element D. I want to delete the element D. Can you tell me इसमें changes क्या होंगे? If I am deleting the element D, क्या changes होंगे? Can you just give me the changes? मुझे D को delete करना है। पहले तो हमें उसके पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि D है कहाँ। चलिए, वेरी गुड, ये पता चल गया कि D है 3 में। ओके, वेरी गुड। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि D का एड्रेस है 3। नाउ सर C में से D का एड्रेस हटा के उस D में जिसका एड्रेस है वो डाल देंगे। C के बाद में पता कैसे चलेगा? आपको तो D का एड्रेस चाहिए था ना, अभी आपने बोला D का एड्रेस चाहिए, मैं बोल रहा हूँ D का एड्रेस है 3, तो फिर C तक पहुंचेंगे कैसे? आपने बोला D का एड्रेस बताइए, मैं बोल रहा हूँ D का एड्रेस है 3, अब C कहां से आ गया? सर हमें ये पता है कि D का एड्रेस क्या है, और हमें ये भी पता है कि D किसको पॉइंट कर रहा है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि D का नेक्स्ट डब्बा कौन सा है। तो D का नेक्स्ट डब्बा तो E है, D का नेक्स्ट डब्बा E है, C कहां से आ गया स्टोरी में?
आपकी बात को अगर मैं सही मान लूं तो डी का अगला डब्बा तो ई है, सी कहां से आ रहा है स्टोरी में, सी कहां से आ रहा है? सर इसका वो डी नहीं- के पहले आता है। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ एग्जैक्टली आप मुझे बताओ सबसे पहले आपको क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए? डी का एड्रेस चाहिए या किसी और का एड्रेस चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सर सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि डी के पहले वाला डब्बे का एड्रेस क्या है। एग्जैक्टली सो यू वांट द एड्रेस ऑफ नोड, ठीक है, दैट पॉइंट्स टू, नोट कीजिए, एड्रेस ऑफ नोड दैट पॉइंट्स टू द नोड कंटेनिंग डी। एक्चुअली आपको ये चाहिए, आपको डी का एड्रेस नहीं चाहिए, अगर आप ध्यान से सुने तो। ठीक है, आपने पहले बोला सर डी का एड्रेस चाहिए, वो आप गलत बोल रहे थे, आपको डी का एड्रेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए वो नोड जिसका अगला नोड डी है। ये देखिए, आपको ये चाहिए, ये सी, ठीक है, और मैं बता रहा हूं कि ये बंदा है सी, सी के आगे टी है। तो लेट मी क्विकली ड्रॉ द डायग्राम। अब मैं आपको बताता हूं कि हमको अपने एक तरीके से पता चल जाएगा कि यार सी नाम का एक नोड है जिसका एड्रेस है 5 और सी का जो पॉइंटर है वो है 1, और ये जो अगला डब्बा है ये है डी का एड्रेस, ये है डी का एड्रेस, ठीक है। चलो, अब आपको पता चला कि सी वो बंदा है जो डी को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, बाय द वे डी किसको पॉइंट कर रहा है? ओ सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बनाया, सॉरी मैंने क्या गड़बड़ बनाया? कैन यू टेल मी? सी पॉइंट कर रहा है, या सी पॉइंट कर रहा है 3 को, राइट? 3 में है डी, और डी पॉइंट कर रहा है 1, आई एम सॉरी, ओके। अच्छा, डी किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को, और 1 में कौन है? 1 में कौन है? ई, ओके फाइन। अच्छा चलिए, डायग्राम का इतना हिस्सा काफी है। ई किसको पॉइंट कर रहा है उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ चलिए, तो आपने मुझे बोला था सबसे पहले हमको उस नोड का एड्रेस चाहिए जो डी को पॉइंट कर रहा है, और वो मैं बता रहा हूं आपको, वो है 5। चलिए, आपको ये पता चल गया, ये वो नोड है जो डी के पहले आता है। अब मुझे बताइए अगला स्टेप क्या करें? आपको डी को डिलीट करना है, क्या करेंगे? सर पहले फिर हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि डी किसको पॉइंट कर रहा है। चलो, आपको पता चल गया कि डी पॉइंट कर रहा है 1 को, 1 मतलब ई। चलिए, अब बताइए। उसके बाद हमें जो जिस डब्बे में सी है उसमें हमें ई का एड्रेस डालना पड़ेगा। वेरी गुड। जो डीसी का डब्बा है उसमें वो डालना पड़ेगा जो सी का। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं 3 को, और यहां लिख देता हूं ये 1, ठीक है। ये 1 मतलब टेक्निकली अब ये ई को पॉइंट करने लगा, ठीक है। उसका मतलब है ये लिंक मिट गया, राइट? ये लिंक मिट गया। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? यस सर। हम सही नहीं कर रहे हैं। आई विल टेल यू व्हाई। आपने ये लिंक तो तोड़ दिया, लेकिन ये मेमोरी आपके साथ रह गया आपके प्रोग्राम में। ये देखो, आपने लिंक तोड़ दिया, आपने डी को अपने नेटवर्क से निकाल दिया, पर ये मेमोरी आपने ब्लॉक कर दिया प्रोग्राम में, ठीक है। तो सही तरीका क्या होता, लेट मी टेल यू। सही तरीका ये होता कि हम एक पॉइंटर लेके आते हैं, कोई दूसरा पॉइंटर, कोई भी दूसरा पॉइंटर, ठीक है। उसको बोलते हैं कि चल तू इस एड्रेस को पकड़ ले 3 को, इसका नाम है पी दे रहा हूँ, पी पॉइंटर। फिर हम उस लिंक को बनाते जो आपने बोला है। हम डी से पूछते डी तू किसको पॉइंट कर रहा है? डी बोलता मैं ई को पॉइंट कर रहा हूँ। तो हम डी से ई को पॉइंट करवाते, मतलब यहाँ पे हम 1 को मिटा के क्या लिखते? हम 1 को मिटा के लिखते, सॉरी 3 को मिटा के हम लिखते 1, मतलब ये लिंक मिट गया, ठीक है। अब सी डी को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि सी आगे वाले को पॉइंट कर लगता। लेकिन हम इस डी को पकड़ के रखे हैं पॉइंटर पी में। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पी जिसको पॉइंट कर रहा है उस ब्लॉक को वापस ले लीजिए। तो ये ब्लॉक का मेमोरी अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वापस चले जाता है, ठीक है। और बाद में हम इस पी को भी मार देते, इस वेरिएबल को भी उड़ा देते, तो तब जाके मेमोरी ठीक से फ्री होता, ठीक है। हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं इस डायग्राम को दोबारा डिस्कस करूंगा, प्रोग्राम में हम इसको दोबारा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट अगर आप इस एरे में सोचें तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने कैसे भी करके पता लगाया कि कौन है जो डी के पहले है, आपको पता चला सी। फिर आपने पता लगाया डी के बाद कौन है, आपको पता चला 1। आप इस 1 को यहां लेके आए, तो आपने सी के आगे अब 3 न लिख के 1 लिखा।
ठीक है, मतलब सी डायरेक्टली को पॉइंट करने लगा, फिर आपने डी वाले नोड को पूरा पूरा उड़ा दिया, मतलब आपने इसको पूरा पूरा फ्री कर दिया। ठीक है, आप इस नोड को खाली कर दिया, ये नोड अब आपका हिस्सा नहीं है आपके लिंक लिस्ट का। नाउ कैन यू आंसर माय क्वेश्चन, कितने नोड्स को शिफ्ट करना पड़ा इस काम को करने के लिए? इसमें भी कितने एक भी नोड्स? नहीं करना पड़ा। एक भी नहीं, नो नोड्स वर शिफ्टेड, जीरो शिफ्टिंग। एक बार फिर देखिए, जीरो शिफ्टिंग। ये पावर है लिंक लिस्ट का। तो लिंक लिस्ट के साथ एडवांटेज क्या है, इंसर्शन डिलीशन में देयर आर नो शिफ्टिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, बट देयर आर ड्रॉबैक्स। देयर आर ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस डायग्राम में? देखिए आप, इसी डायग्राम में अगर आपको मैं बोलूं, क्या मुझे इमीडिएटली बता सकते हैं, अगर आप स्टार्ट करें स्टार्ट से, मतलब नेचुरली आप तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपके पास तो सिर्फ पहला पॉइंटर है 0 का। ठीक है, अगर मैं आपको इमीडिएटली बोलूं कि सी के बाद कौन सा नोड है, आपके पास सी का एड्रेस नहीं है, राइट? आपके पास एड्रेस है स्टार्ट का। अगर मैं बोलूं सी के बाद कौन सा नोड है, तो आप नहीं पता कर सकते। सबसे पहले आपको ए से जाना पड़ेगा 2 में, 2 मतलब सी, सॉरी बी से जाना पड़ेगा 5 में, फिर आप 5 में जाएंगे सी, फिर आप जाएंगे डी में। तो रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं, बताइए? लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एरे की तरह एड्रेसेस लीनियरली अरेंज्ड नहीं है। या आपके पास सिर्फ शुरुआत करने के लिए स्टार्ट है, स्टार्ट से आपको फिर लिंक पकड़ के आगे जाना पड़ता है, फिर वहां से लिंक पकड़ के आगे जाना पड़ता है, फिर लिंक पकड़ के आगे जाना पड़ता है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक लिंक लिस्ट बना के दे रहा हूं एंड ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, ड्रॉ दिस लिंक लिस्ट विद मी एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके, सो वी हैव अ इन्फो पार्ट, आप समझ जाएंगे मेरे क्वेश्चंस का आंसर। वी हैव अ इन्फो पार्ट, कुछ लोग इसको डेटा भी बोलते हैं, एंड वी हैव अ लिंक पार्ट। ओके, ठीक है, एंड दीज आर माय एलिमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस जिसका आंसर आप मुझे देंगे, और आप कितना जल्दी दे सकते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है लिंक लिस्ट में। ओके, these are the indices. We start with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, elements note कीजिए. The elements are 10. Okay, wait, just a minute. 40, 5, -6, 2. Okay, and the links are 1, 4, 6, 0, null. And there is a pointer called as start, and start is pointing to 2. Start is pointing to 2. So can you quickly draw the linked list in your copy? आप इस लिंक लिस्ट को अपने कॉपी में बना सकते हैं? Yes, sir. Can you quickly draw the linked list in your copy? ओके, इस लिंक लिस्ट के डायग्राम को कॉपी में जरा ड्रॉ कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे मेरे क्वेश्चंस का। या रोल नंबर E01 आदित्य, प्रेजेंट सर। E02 अधिबा, E03 अदिति, E04 आदित्य राज, प्रेजेंट सर। E05 अल्पना, Present, sir.
E06 Aniket, Present, sir. E07 Anjali, E08 Anurup, Present, sir. E9 Archit, Present, sir. E10 Asma, Present, sir. E11 Ayush, E12 Bhumika, E13 Chaitanya, E14 Deven, Present, sir. E15 Disha. ओके, आप चाहें तो मुझे आंसर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ठीक है? आई विल शो द करेक्ट आंसर्स अगर आप डायग्राम बना के भेजें तो। ओके, मैं लिंक लिस्ट डिस्प्ले करता हूँ, प्लीज सेंड योर डायग्राम। इसका लिंक लिस्ट डायग्राम चाहिए, इसका ब्लॉक डायग्राम कि कौन सा ब्लॉक किसको पॉइंट कर रहा है। या E16 हर्ष। प्रेजेंट सर। E17 हर्ष नेताम। Present, sir. ओके, E18 हिनाक्षी। प्रेजेंट सर। ओके, E19 जॉनसन। सर E20 है ना? सर E19 उमेश बोला। ओके सर, E19 होमेश प्रेजेंट, E20 जॉनसन प्रेजेंट, राइट? यस सर। ओके, E21 कबीर, E22 खितेश्वर, E23 खुशी, प्रेजेंट सर। E24 किरण, E25 क्रिश। Present, sir. ओके, E26 कुणाल, E27 कुणाल, E28 कुंजल, प्रेजेंट सर। E29 दीपाक्षी, E30 मानसी, प्रेजेंट सर। E31 Present, sir. ओके, E32 परागी, E33 पार्थ। प्रेजेंट सर। ओके, या अभी तक किसी का आंसर नहीं आया व्हाट्सएप में? जस्ट सेंड मी द पिक ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, वी हैव वन आंसर। मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। E34 प्रांजल, E35 प्रतीक। Present, sir. E36 प्रियाल, E37 प्रियेश, E38 राघव। Present, sir. ओके, E39 साई रोहित। Present, sir. E40 रितेश, E41 रुमान, E42 राशि, E43 सलोनी, E44 समीक्षा, E45 संस्कृति। प्रेजेंट सर। ओके, E46 सत्यम, Present, sir. E47 सौरभ, E48 सौरभ कुशवाहा, E49 सताक्षी, E50 श्रुति। प्रेजेंट सर। ओके, E51 शुभम, E53 शुभम दिवांगन। Present, sir. ओके, E54 शुभांकर, E55 सोमेश। प्रेजेंट सर। ओके, E56 सौम्य गुप्ता, E57 तुषार, E58 ट्विंकल, E59 विकास। Present, sir. ओके, E60 विनीत। यस सर। ओके, E61 विपुल, E62 विवेक। Present, sir. ओके, E63 याशी। प्रेजेंट सर। ओके, E64 योशी। प्रेजेंट सर। ओके, इससे पहले कि मैं सेक्शन F के अटेंडेंस में जाऊं, लेट मी क्विकली सी द आंसर्स। ओके, या फाइन, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू -6